हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 9 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना को शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये परियोजना शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। आप देख सकते हैं, Ministry of Electronics and Information Technology launched the Digital India Common Service Center project to reduce the digital divide in rural India. So the project begins in Pilibhit and Gorakhpur, Uttar Pradesh, providing access to e-governance, financial and commercial services. So a total of 4,740 model DICSC centers will be set up in Gram Panchayats across 10 districts nationwide. So Pilibhit will have 720 centers, Gorakhpur 1273, and other districts include Chhatrapati Sambhajinagar, Chamba, Khammam, Gandhinagar, Mamit, Jodhpur, Leh and Puducherry. So ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालका शिमला रेलवे विच वॉज सीन इन द न्यूज कनेक्ट्स विच टू स्टेट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, खबरों में रहा कालका शिमला रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान या फिर पंजाब एंड उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कनेक्ट करता है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। आप देख सकते हैं, द हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर urged the central government to consider running green hydrogen trains on the Kalka Simla railway, and Kalka Simla railway is a narrow gauge railway from Kalka to Simla. So it was built in 1898 to connect Simla, then the British summer capital, to the Indian rail network. So the 96-kilometer line opened in 1903 and is known as Toy Train, includes 18 stations, 102 tunnels and over 850 bridges. So the line climbs from 655 meter to 2076 meter altitude, showcasing remarkable engineering with the Kano multi-arc bridge and Baroque tunnel. And it is designated as a UNESCO World Heritage Site in 2008, and it holds a Guinness World Record for its steel accent. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the initiative launched by the Indian Council of Medical Research to encourage groundbreaking health innovations? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य संबंधी अभूतपूर्व नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव, सेकंड इनोवेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोग्राम, थर्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज या फिर नेशनल हेल्थ इनोवेशन चैलेंज।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस इनिशिएटिव का नाम है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। आप देख सकते हैं The Indian Council of Medical Research has launched the first in the world challenge for health innovations, and the initiative encourages Indian scientists to develop groundbreaking health solutions with a global impact. So it focuses on high risk, high reward project for innovative health technologies, and the challenges emphasizes vaccines, drugs, and diagnostics while avoiding incremental innovations. And this initiative aims to foster creativity and significant advancements in the health sector. So high risk, high reward project की बात करें तो these projects are research projects that have potential to for significant impact, but it also involve considerable uncertainty. So encouraging such projects can lead to breakthrough that transforms healthcare practices and technologies. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो ये एक एपेक्स बॉडी है इंडिया की फॉर द फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। इसको फॉर्म किया गया था 1911 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं राजीव बहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोविंद सागर लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है गोविंद सागर लेक जो कि हाल ही में खबरों में थी ये किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर लेक जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं The Himachal Pradesh Chief Minister launched water sports activities at Gobind Sagar Lake, and this lake is a man-made reservoir in the Una and Bilaspur district of Himachal Pradesh. Named after Guru Gobind Singh, it is fed by the Bhakra Dam on the Satluj River. And Bhakra Dam is one of the highest gravity dams in the world, standing 225.5 meter tall. The lake is 90 kilometer long, covers 170 square kilometer and has a maximum depth of 163.07 meter, making it one of the deepest artificial lakes. And it supplies irrigation water to Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan, benefiting regional agriculture. तो आप ध्यान रखेंगे गोविंद सागर लेक स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सबमिटेड लेटर ऑफ इंटेंट टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स इन इंडिया। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन लोकेटेड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में आईओए ने भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए आशय पत्र प्रस्तुत किया है। आपको बताना है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये स्थित है न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और इस एसोसिएशन की बात करें तो इसको इंडियन ओलंपिक कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एथलीट्स to represent India at Olympic Games
Asian Games and other international athletic meets and for managing the Indian teams at these events. So it also acts as the Indian Commonwealth Games Association responsible for selecting athletes to represent India at the Commonwealth Games. और वर्तमान समय में इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two countries' financial intelligence units are collaborating to combat money laundering and terror financing? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किन दो देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए सहयोग कर रही हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड ओमान, इंडिया एंड यूएई, इंडिया एंड कतर या फिर इंडिया एंड सऊदी अरब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इंडिया और कतर की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके मध्य यह समझौता हुआ है। आप देख सकते हैं India and Qatar's financial intelligence units met to strengthen cooperation on AML and CFT, and the meeting aimed to enhance cooperation in anti-money laundering and counter-terrorism financing. So the discussions included IT systems and public-private partnership, and virtual digital assets were also the key topic of the discussion. So Qatar praised India's Financial Intelligence Network 2.0 system. So यहाँ पे जो फिननेट है उस सिस्टम को कतर ने प्रेज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the primary focus of the joint venture formed by NTPC and ONGC that has been established in November 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2024 में स्थापित एनटीपीसी और ओएनजीसी द्वारा गठित संयुक्त उद्यम का प्राथमिक फोकस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं E40 पेट्रोलियम प्रोडक्शन, सेकंड रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स, थर्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन मेथनॉल प्रोडक्शन, फोर्थ न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस ज्वाइंट वेंचर का जो प्राइमरी फोकस है वो है रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स। आप देख सकते हैं NTPC and ONGC have formed a 50-50 joint venture company focused on renewable and new energy initiatives. So it aims to explore various renewable energy avenues including solar and wind energy. And the venture will also focus on energy storage, green hydrogen and sustainable aviation fuel. E-mobility is included in the initiatives to promote sustainable transport solutions. So NTPC की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन and it is an Indian central public sector undertaking under the ownership of Ministry of Power. इसको फाउंड किया गया था 1975 में और एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। इसके साथ ही ओएनजीसी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इट इज एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और इसको फाउंड किया गया था 1956 में। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं अरुण कुमार सिंह। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।